Do you know we use electric current in different ways? So far, we have discussed that charges are at rest. Now, we are going to discuss the charges are in moving position. When the charges are in moving position. Hello, Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today's first topic is electric current. Basically, electric current क्या होता है? But before discussing the electric current, I would like to introduce you that when charges are at rest, that study is known as electrostatics. Electrostatics is basically made up of two words. One is electro. Electro word is derived from the electron, and statics. When statics means statics word is something that is fixed. ठीक है, when electrons are fixed, or you can say when electrons are not in moving position, then that study is known as electrostatics. What happens when these charges come in the motion, or you can say when the charges are moving? When the charges are moving, then electric current starts flowing. Then electric current starts flowing. And properties of moving charges are used in different electric appliances. These electric current is used in different ways in different electrical appliances. Like if I am talking about the bulb, this electric current is used to generate the heat and the light. Now, if I am talking about motor, this electric current is used to rotate the fan. Now, if I am talking about the factories, this electric current is used to generate the electromagnets. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए भी इस इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता है. Now, if I am talking about the fan, this electric current is used to rotate the blades of the fan. Rotates the blades of the fan, right? But what is basically this electric current is? This electric current is denoted by capital I, and its formula is charge per unit time. Charge is represented with small q and time is represented by small t, and this SI unit of I is ampere. SI unit of I is ampere, AMPERE, and short form is capital A. But when we switch on, in last video I asked you the question, how does this fan work? फैन जो है वो किस तरीके से वर्क करता है? फैन को वर्क करने के लिए देखो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो आपका किससे कनेक्टेड है? वायर से कनेक्टेड है. और उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो है वो क्या है? स्विच है. स्विच में बेसिकली दो पोजीशंस होती हैं, वन इज ऑन पोजीशन, अनदर इज ऑफ पोजीशन. When you switch on the button, the circuit is complete and fan starts moving. But when the switch is in off position, the circuit is incomplete and fan is not moving. What is basically the electric circuit is? Electric circuit क्या होता है? So the next topic is electric circuit. Electric circuit is basically the path through which current can flow. Current जो है वो क्या कर सकता है? Flow कर सकता है if the circuit is closed. If the circuit is closed, the path along which electric current flows, along which electric current passes, is known as electric circuit. Electric circuit क्या है? Basically the path along which electric current
sorry, electric current passes is known as electric circuit. अब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए, ठीक है। दैट सोर्स, लेट वी वांट टू ग्लो द बल्ब, हमें क्या करना है, बल्ब को ग्लो करना है। सो दिस सोर्स शुड बी कनेक्टेड थ्रू द बल्ब, ये बल्ब के साथ कनेक्ट होगा, किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू। बट नाउ इफ यू वॉच दिस थिंग, दैट सोर्स इज कनेक्टेड टू बल्ब, कैन द बल्ब ग्लो? नो, बिकॉज व्हेन यू ऑन द स्विच, जब आप स्विच को ऑन करते हो या आप इससे सोर्स से सप्लाई तो आपने प्रोवाइड कर दी वायर्स को, पर बल्ब तक पहुंच गई, लेकिन बल्ब से वापस सोर्स तक जब तक नहीं आएगी तो ये पाथ जो है वो एक क्लोज्ड सर्किट नहीं बनेगा, और क्लोज्ड सर्किट नहीं बनेगा तो आपका जो है वो सर्किट वर्क नहीं करेगा। इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक क्लोज्ड पाथ चाहिए होता है। दिस सोर्स, इन केस ऑफ फैन और बल्ब, दिस सोर्स इज प्रोवाइडेड टू यू विद द हेल्प ऑफ, कनेक्टेड टू यू विद द हेल्प ऑफ अ स्विच, ठीक है। यहां पर क्या लगा होगा, ये स्विच लगा हुआ, दिस इज बेसिकली द स्विच, and switch is basically having two position, one is off position and another one is, you can say, on position. When the switch is on position, the circuit is closed and the bulb starts glowing. When switch is in off position, the circuit is incomplete and bulb is not glowing. ठीक है, in this way the path electric circuit works. But टू रिप्रेजेंट, देखो अब हर जगह तो मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती कि मैंने यहाँ पे सोर्स लिख दिया, यहाँ मैं बल्ब लिखूं, ये तो एक सिंगल बल्ब है, एक आपको बताने के लिए मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। बट बहुत सारे जब आप जो है अपने घर में भी देखोगे तो हर एक चीज को इस तरीके से लिख करके आप अगर बनाओगे अपना पूरा डायग्राम, तो दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को यूज किया जाता है। बेसिकली द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिप्रेजेंट्स दीज नेम्स, नेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और हमारी कन्वीनियंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सिंबल्स। इलेक्ट्रिक सिंबल्स किसके, जो बहुत कॉमन जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। दैट सोर्स इज इनिशियली द सेल। सेल जो है दैट इज द सोर्स, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन के साथ। जो बड़ी लाइन होती है इसके अंदर दैट इज द पॉजिटिव, और जो छोटी लाइन होती है दैट इज द नेगेटिव ऑफ द सेल। सेल को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जब सेल जो है उसको मैं कनेक्ट करूंगी बहुत सारे सेल्स, जहां पर मुझे करंट, देखो सेल, इस सेल की क्या है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट है कि उतना ही करंट प्रोवाइड कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है मेरा वो बड़ा हो गया तो उसको क्या चाहिए होगा, ज्यादा करंट चाहिए होगा ऑपरेट करने के लिए। तो उस केस में क्या किया जाता है कि इन सेल्स को, जैसे ये डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, दीज आर डिफरेंट सेल्स, इन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि सोर्स से करंट की अमाउंट जो है वो ज्यादा ले सके। कनेक्शन जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, वन इज सीरीज कनेक्शन, वन इज पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। जब सीरीज, लेकिन जब ज्यादा करंट की अमाउंट चाहिए तो हम इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या है, एक सेल का नेगेटिव जो है दैट इज कनेक्टेड टू अनदर सेल पॉजिटिव, दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। सो अब जब ये सीरीज में कनेक्ट करेंगे सेल को, तो हम सीरीज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से। दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज नोन एज बैटरी। इसको क्या कहा जाता है, बैटरी। बैटरी इज नथिंग बट द सीरीज कनेक्शन ऑफ द सेल। सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स है, और कहां यूज किया जाता है, जहां करंट की अमाउंट जो है वो आपको ज्यादा चाहिए होती है।
तो हम क्या करते हैं, इस बैटरी को यूज करते हैं. दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर बेसिकली द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ अब बात आई स्विच की. ठीक है, स्विच भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो फर्स्ट स्विच दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज प्लग की. प्लग. अब ये स्विच जो है इसकी दो पोजीशन हो सकती हैं. वन इज ऑफ पोजीशन एंड वन इज ऑन पोजीशन. ऑन पोजीशन का मतलब है इट इज इन क्लोज्ड पोजीशन. ऑफ पोजीशन का मतलब है कि ये क्या है, ओपन पोजीशन में. ठीक है, जब ये आपका क्लोज्ड पोजीशन में है तो इसका सिंबल जो होगा दैट इज दिस. जब आपका ये ओपन पोजीशन में है तो इसका सिंबल क्या होगा, ये. ठीक है, दिस इज द प्लग की. नाउ सेकेंड की इज टैप की. टैप की भी दो ही पोजीशंस है. वन इज ऑफ पोजीशन एंड अनदर वन इज ऑन पोजीशन. ठीक है, जब वो ऑफ पोजीशन में है यानी सर्किट ओपन है तो उस केस में मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये है दिस एंड दिस. जब ये ऑन पोजीशन में है तो इट मीन्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दिस इज द ऑन पोजीशन. दीज आर बेसिकली द स्विचेस. ये क्या है, आपके स्विचेस हैं. अब बात करते हैं, अभी हमने बताया था, मैंने बताया सिंबल बल्ब यूज किया था. बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और इसको एनक्लोज करते हैं एक सर्कल के अंदर. दिस इज द सिंबल ऑफ द बल्ब. अब सर्किट के अंदर क्या होगा, हमारा करंट पास होगा. करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है दैट इज एमीटर. ठीक है, सिंबल क्या होता है, सर्कल. सर्कल के अंदर लिखा होगा ए. सर्कल के अंदर ए लिखा है, इट मींस द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द करंट. उसको करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एमीटर. नाउ द नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर. वोल्ट मींस वोल्टेज मेजर करने के लिए. ठीक है, सो सर्किट के अंदर सर्कल बना करके जब V लिखा हुआ है इट मींस दैट इज अ वोल्ट मीटर. जब वोल्टेज को मेजर करना हो तो हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं. करंट को मेजर करना हो तो हम किससे मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं. मेजरिंग द करंट, एमीटर इज यूज्ड टू मेजरिंग द करंट and this voltmeter is used to measure the voltage. Measure the voltage. ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि स्विचेस जो है, देखो घर के अंदर तो क्या होता है, स्विच के साथ और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ डायरेक्टली क्या कनेक्टेड होता है, आपका वायर कनेक्टेड होती है. बट वहां पर जहां आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई हो रहा है और आपको कम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो आप क्या यूज करते हो, रेजिस्टेंस यूज करते हो. पर रेजिस्टेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. वन इज नोन एज, रेजिस्टेंस जो है वो दो तरीके के हैं. वन इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड अनदर वन इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. Variable resistance is also known as rheostat. Rheostat. फिक्स रेजिस्टेंस को, जो फिक्स रेजिस्टेंस है उसके लिए सिंबल यूज करते हैं ये वाला. जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसमें क्या होता है, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस. फिक्स रेजिस्टेंस जो है उसमें दो ही टर्मिनल होते हैं. जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसमें तीन टर्मिनल होते हैं. बाय वेरिंग द थर्ड टर्मिनल यू कैन एडजस्ट द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस. दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज रियोस्टेट. इसको क्या कहा जाता है, रियोस्टेट भी कहा जाता है.
ठीक है। दिस, और इसके अलावा जो लास्ट आपके सिलेबस में है दैट इज फ्यूज, जो मोस्ट कॉमनली आपके घरों में इन्वर्टर के अंदर यूज भी होता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन, बीच में गैप है, यहां पर मैं क्या करूंगी, इसको इस तरीके से कनेक्ट करूंगी, दैट इज द फ्यूज। ये क्या होता है, फ्यूज होता है। नाउ मैंने सेल के बारे में बता दिया कि सेल जो है वो हमारा क्या होता है, एक इनिशियल स्ट्रक्चर है। जो इसमें बड़ी लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव, अगर मार्क किया हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये अंडरस्टूड है कि जो बड़ी वाली लाइन है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो छोटी वाली लाइन है दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। बैटरी जो है बेसिकली दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है। वहां पर क्या है कि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो है दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वो कनेक्टेड है। अब जो दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज द अनदर एंड, और जो एक फर्स्ट सेल का आपका पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज द अदर एंड, वो आपका क्या होगा, अदर एंड होगा। अब बैटरी जो है वो यूज की जाती है जब आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए हो। स्विचेस के बारे में बताया कि दो तरीके के स्विचेस जो है वो जनरली आपके सिलेबस में यूज होते हैं, वन इज अ प्लग की एंड अनदर वन इज अ टैप की। ठीक है। की मतलब या स्विच का मतलब क्या होता है, आपके पास दो पोजीशन है, वन इज ऑफ पोजीशन एंड अनदर वन इज द ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन है मींस दैट इज द क्लोज्ड पोजीशन, ऑफ पोजीशन है दैट इज द ओपन पोजीशन। प्लग की के अंदर ओपन पोजीशन का ये सिंबल है और क्लोज का ये सिंबल है। टैप की के बारे में बताया, बल्ब वगैरह मैंने बता दिया। अब बात आती है वायर्स की। ठीक है। वायर्स जो होती हैं वो यूज की जाती हैं सोर्स को किसके साथ कनेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। अगर आपकी वायर्स जो है जनरली जो है वो वायर्स यूज की जाती है कॉपर की। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्लोज पोजीशन और ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट की। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली इन सिंबल्स का यूज किया जाता है। अब दो तरीके की पोजीशन हो सकती है सर्किट के अंदर, वन इज क्लोज्ड सर्किट मींस एंड अनदर पोजीशन इज ओपन सर्किट। सोर्स किससे प्रोवाइड होगा, सेल या बैटरी से। ठीक है। पोजीशन क्लोज बना रही हूं मैं, ग्लो क्या करवाना है, बल्ब ग्लो करवाना है। सो दिस इज द क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट की अगर बात करेंगे तो ओपन सर्किट क्या है बेसिकली, this is the open circuit because here the plug key is or switch is open and here the circuit switch is in on position। ठीक है। तो ये हो गया क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट की बात। नाउ क्लोज सर्किट के अंदर सर्किट जो है दैट इज कंप्लीट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट, देयरफॉर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक है। करंट जब फ्लो करता है तो हमेशा फ्लो करेगा कहां से, पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आउटगोइंग होगी और नेगेटिव टर्मिनल पर आपके इनकमिंग होगी। ठीक है। और करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस द सर्किट इज ओपन, देयरफॉर इट इज इनकम्प्लीट, नो करंट इज फ्लोइंग एज द स्विच इज ओपन इज इन ऑफ पोजिशन और यू कैन से स्विच इज ओपन। ठीक है। दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। इन दिस पर्टिकुलर केस सर्किट इज कंप्लीट, therefore current is shown here। in this case circuit is incomplete, therefore no current is shown here। ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है, बट न्यूमेरिकल में आप ये मत मान के चलना
कि आपको जो है वो करंट जो है वो शो किया हुआ है या नहीं किया हुआ, उससे आप क्लैरिफाई करोगे कि सर्किट आपका क्लोज है या नहीं है। ठीक है, आपको स्विच से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गिवन सर्किट इज क्लोज्ड वन और ओपन वन। नाउ देयर I told you there are two types of connections. One is series connection and another one is parallel connection. One is parallel and another one is series connection. In parallel connections, circuit is having multiple paths. Multiple paths किसके लिए? करंट के फ्लो करने के लिए. In series connection, circuit is having only one path for the flowing of current. ठीक है, the major difference between the parallel connection and series connection is that in parallel connection the circuit is having multiple paths for the flowing of current, and in series connection there is only one path for the flow of current. Now firstly I am talking about when electric connections of cell. Electric connection of cells. किसकी बात कर रहे हो? इन सीरीज. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ सेल्स इन सीरीज. ठीक है, देयर आर, लेट एज्यूम देयर आर 3 सेल्स. ठीक है, 3 सेल्स हैं और इन 3 सेल से मुझे क्या ग्लो करवाना है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको ग्लो करवाना है, और यहां क्या लगा हुआ है? एक स्विच लगा हुआ. इनसे वन स्विच इज कनेक्टेड. स्विच को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से. ठीक है, अब सीरीज में कनेक्शन करना है, तो सीरीज में कनेक्शन करने का क्या मतलब है? अगर मैंने इसको यहां नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया तो दूसरा जो लास्ट सेल है उसका पॉजिटिव एंड जो है वो सर्किट के इसके साथ कनेक्टेड होगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा. अब सीरीज कनेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था? एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जो है दैट इज कनेक्टेड टू द सेकंड सेल नेगेटिव टर्मिनल. सेकंड सेल पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू थर्ड सेल नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज द सीरीज कनेक्शन. ठीक है, जब ये स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा? आपके पास यहां पर करंट जो है वो फ्लो करेगा. लेट सारे सेल्स जो थे उनकी वोल्टेज जो थी दैट इज E1, ये E2 थी, एंड दिस इज E3. E बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. In series connection, the total E is equal to sum of all electromotive force. It means total EMF is equal to sum of all, that is E1 is equal to E is equal to E1 plus E2 plus E3. ठीक है, ये है हमारे पास सीरीज कनेक्शन में. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं, इसको मैं इसी के नीचे लिख देती हूं. टोटल E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3. ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे सीरीज कनेक्शन में. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द पैरेलल कनेक्शन, नाउ कनेक्शन ऑफ सेल्स, connection of cells in parallel. This is positive negative, this is positive negative, this is positive negative. Here I am taking the bulb and here I am taking the switch. Let
all the EMFs are equal, even and even. ठीक है. पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जो है दैट इज कनेक्टेड टू अनदर सेल पॉजिटिव टर्मिनल, सेकेंड सेल पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द थर्ड सेल पॉजिटिव टर्मिनल, and all the negative terminals are also connected together. So in this particular case, total electromotive force, total E comes out to be is equal to E1. ठीक है. अगर यहां पर भी इस केस में भी सीरीज वाले कनेक्शन में भी मैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 लूं, तो उस केस में टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स ऑफ E1. ठीक है. बट पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आएगी दैट इज इक्वल टू E. वो किसके इक्वल आएगी, E के इक्वल आएगी. अब यहां से मैंने ये चीज तो बता दिया. अब आता है कि अगर हम, ये तो आया सेल्स को जब हमने कनेक्ट किया किसके अंदर, सीरीज में और पैरेलल में. लेट सेल्स हमारे पास जो है वो सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन करने की बजाय अब मैं कनेक्ट करती हूं किसको, बल्ब्स को सीरीज और पैरेलल में. When bulbs are connected in series, and second is when bulbs are connected in parallel. Let I am taking 3 bulbs. Bulb 1, 2, 3. This is B1, this is B2, this is B3, and here a switch is there and a battery is connected. ठीक है. This is the switch. Now when this switch is closed, जब ये switch close होगा तो तीनों बल्ब जो है वो ग्लो करेंगे, बट दे आर नॉट सो ब्राइट, नॉट सो ब्राइट. What happens when one of the bulb get fused? Let B2 get fused. अब B2 फ्यूज हो गया तो इट मींस यहां से करंट जो है वो मेरा बल्ब B1 तक तो गया, पर B2 जो है वो फ्यूज है. इट मींस दैट बिकम्स द ओपन सर्किट. वो क्या हो जाए, B2 जो है वो क्या है, फ्यूज्ड बल्ब है. तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास नाइदर ऑफ द बल्ब, नाइदर B1 नॉर B3 विल ग्लो. ठीक है. कोई भी जो है वो आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा. हुआ क्या, इस पर्टिकुलर केस के अंदर सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी से ड्रॉ हुई है वो सारे बल्ब्स के द्वारा क्या की जाती है, शेयर की जाती है. ठीक है. जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इस सोर्स से आई है, आपके पास बैटरी से आई है, वो तीनों बल्ब जो है वो शेयर करते हैं. दैट्स वाई इसमें बल्ब जो है वो आपका क्या करता है, ग्लो तो करेगा बट उतना ब्राइटली ग्लो नहीं करेगा. इट मींस अगर आप सीरीज में कनेक्शन करते हो तो अप्लायंसेस जो है वो आपके अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर पाते. नाउ इफ आई एम टॉकिंग बल्ब्स, व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, bulbs are connected in parallel. Take 3 bulbs. This is B1, this is B2,
and this is B3. ठीक है, अब जब ये स्विच S जो है वो क्लोज होगा तो आपका जो है वो बल्ब ग्लो करेंगे। ठीक है, तीनों बल्ब जो है वो ग्लो करेंगे इसमें, और वो ग्लो करेंगे किसमें, अपने आप सो ब्राइटली, जितनी उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो ब्राइटली ग्लो करेंगे इस केस में। बट इस मान लो B3 जो है वो फ्यूज हो जाता है, B3 गेट्स फ्यूज्ड, तो यहां पर पैरेलल पाथ के केस में क्या था कि आपके पास मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं। जब मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं तो इट मींस अगर कोई पाथ जो है उसमें से करंट पास नहीं हो रहा तो क्या होगा, रेस्ट 2 पाथ जो है वो नॉर्मली वर्क करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में B1 एंड B2 विल ग्लो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली अपनी जो है एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं किससे, जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वहां से ये इंडिपेंडेंटली अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं। इसीलिए बाकी 2 बल्ब जो हैं वो ग्लो करेंगे, और अगर कोई भी पाथ या कोई 2 पाथ भी अगर आपके फ्यूज हो गए, कोई 2 बल्ब भी आपके फ्यूज हो गए, तो भी एक सिंगल बल्ब जो है वो आपका ग्लो करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ग्लो जो होगा that is very bright as comparison to सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन के कंपैरिजन में ये क्या होगा, ज्यादा होगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द today's lecture. Still, if you are facing any difficulty or you have any doubt in today's lecture, you can post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel among your friends, among your relatives who are studying in the same class. Thank you for today.